Student, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7th Maths and our chapter is Exponent and Power. Okay. So student, this is our new chapter, that is chapter number 13, and the this heading of this chapter is Exponent and Power. So what do you mean by exponent and what is power? Okay, so let's start this new chapter and this new concept also. Okay, so student, in your previous classes you learn about different type of number like whole number, integer or rational number and their properties also. Okay, so we have also learned about their various operations. हमने बहुत सारे ऑपरेशन भी पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, like addition, subtraction, multiplication and division. Okay, in this chapter we shall learn to write number in exponential form. ओके हमारे चैप्टर का हेडिंग क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंट? सो व्हाइल लर्निंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन वी लर्न दैट रिपीटेड एडिशन. हमने क्या पढ़ा था? रिपीटेड एडिशन पढ़ा था. इट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. जब हम 5 + 5 + 5 3 टाइम अगर हम 5 + 5 + 5 करते हैं, सो दैट इज 5 × 3 and our answer is 15. So same answer we get 5 + 5 + 5, that is 15. Okay, understand? So we can write it in exponential form. Okay, so what is 5 + 5 + 5? When we added same number in how many times? So we can tell the that is a multiplication. Okay, 5 × 3, that is 15, and again we can write it 5 + 5 + 5, that is 15. Okay, and same thing if we write 2 + 2 + 2 + 2, so we know that that is 8, means 4 times 2 is 8. When we add 2 4 times, so we get 8. Okay, and same thing if we multiply 2 × 4, so we can get 8. Okay, so that is called multiplication. In the same manner we also have a shortcut to express repeated multiplication. अब हमने repeated एडिशन को हमने क्या बोला था? मल्टीप्लिकेशन बोला था. सो सेम थिंग हियर, इफ वी मल्टीप्लाई सेम नंबर हाउ मेनी टाइम, सो हम शॉर्टकट में उसे किस में लिखेंगे? हम पावर नोटेशन में लिखेंगे और वी कैन टेल देम दैट इज एक्सपोनेंट, एक्सप्रेस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो सी हियर when we express. अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? why we need for exponent or power? So when very large number or very small number, very large number means mass of earth or distance from earth to sun. Okay, so how to represent that numbers? ओके, हम यहाँ से अगर हम किसी नंबर को पढ़ना चाहते हैं, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर आ जाएगा हमारा करोड़, 10 करोड़, देन वन मोर थिंग अरब, 10 अरब. ओके, सो 9 to 12 डिजिट नंबर तो हम इजीली पढ़ सकते हैं, बट व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 12 डिजिट, सी हियर मास ऑफ द अर्थ, कितने डिजिट नंबर दिख रहा है यहाँ पर आपको? 5970, फिर 000, फिर 000, 000, 000. हाउ मेनी zeros are here? 3, 36, 39, 312, 15, 18 एंड 18 के बाद में कितना आएगा? 21. 21 के बाद अगेन 3 डिजिट नंबर है, दैट इज 21 के बाद में कितना आएगा? 24 एंड 25. सो हाउ वी कैन रीड दिस नंबर? कैन यू रीड दिस नंबर? और आप इसका कोई नाम दे सकते हैं. सो अगर इतना बड़ा नंबर है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? और आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का वायरस का साइज़ क्या है? इट इज़ वेरी स्मॉल. हमारा जो हेयर है, एक हेयर का भी 100 टाइम्स छोटा है वो. ओके, सो व्हेन वी राइट when we want to write any big number and any small number, okay, so we can need this exponent or this power. Understand? So while
अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बताई, हम जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेट इज़ कॉल्ड, उसका हम शॉर्टकट फॉर्म बोलते हैं, हम उस नंबर को पावर में लिखते हैं। ओके, जैसे सपोज इफ़ यू वांट टू राइट, सी हियर, अगर हम इस टाइप से लिखना चाहते हैं, 10 कितने टाइम है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम 10, तो हम इसे लिखेंगे 10 टू द पावर 4, और we can read it 10 raised to the power 4. Okay, here 10 is the base and 4 is the exponent or power. Understand, this is called exponential form of 10,000. अगर 10,000 है तो 10,000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, वी कैन राइट 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, 10 4 टाइम अगर होंगे तो हमारा उसका आंसर आएगा 10,000। सो 10,000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 10 टू द पावर 4, एंड हियर 10 इज कॉल्ड बेस and 4 is called exponent, or we can say that power. Understand, 10 is called base and 4 is called exponent or power. Understand, so here now you can understand ना, हम एक्सपोनेंट और पावर किसे कहेंगे। एक्सपोनेंट हमने बोला जो उसकी पावर है, राइस जो उस पर पावर चढ़ी हुई है, डेट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। ओके, वो पावर कोई कुछ भी हो सकती है, जैसे 1000 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, मीन्स 10 कितने टाइम है, हाउ मेनी टाइम 10 हियर इन मल्टीप्लीकेशन, 3 टाइम्स, सो वी कैन राइट 10 टू द पावर 3। ओके, अंडरस्टैंड, so this way we can, and here also 10 is our exponent and 3 is our 10 is our base and 3 is our power. Okay, same thing. So, and students, you know how to write any number in expanded form. So एक्सपांडेड फॉर्म में अगर हमें कोई नंबर लिखना है, सपोज हमारे पास ये नंबर है 47561, सो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 एंड प्लस 1 इंटू 1, ओके, क्योंकि वो वंस का प्लेस है, सो 1 इंटू 1। Okay, so here 4 into 10, 10,000, 10,000 में कितने जीरो, how many zeros are here, 1 2 3 4, so we can write 10 to the power 4। 1000 में how many zeros are here, 3, so we can write 10 to the power 3। 100 में 2 जीरो हैं, so we can write 10 to the power 2। 10 में only 1 जीरो है, so we can write 10 and plus 1। So that is exponential form, expanded form of that number। हम expanded form 4th 5th क्लास में लिखते थे ना बेटा, तो उसी टाइप से 6th क्लास में भी हमने expanded form लिखा हुआ है। सो हम किसी भी नंबर का को expanded form में जब लिखते हैं तो हम उसे अगर इस टाइप से लिखेंगे पावर्स में, सो इट विल बी ईजी टू रीड आउट। ओके, हमारे लिए और ईजी हो जाएगा उसे पढ़ना। ओके, अंडरस्टैंड। So if you write same number, different number, that is 172 5, जो आपको नीचे नंबर लिखा हो, so first of all you have to know this is our expanded form। see, this is called expanded form, ये हम 4th 5th 6th में लिखते थे, this is called our expanded form। okay, now this is called exponential form। ये फॉर्म हमने किस में लिखा, इसको एक्सपोनेंट के पावर, मतलब हमने उसकी पावर में लिख दिया, और वी कैन से दैट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी नंबर। ओके, एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन, हम इसे बोलेंगे पावर नोटेशन में हमने उसे राइट डाउन कर दिया। ओके, सो अगर ये वाला नंबर हमें दिख रहा है तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11।
So here 11 digit are here. So first of all we can, if we want to write exponential form of that number, so 1 into 1 है सबसे फर्स्ट नंबर, उसके पीछे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we can write 10 to the power 10 plus 7 into 10 to the power, how many zeros are here, 10 to the power 9 plus 2 into 10 to the power 8 plus 5 into 10 to the power 7 and so on. So आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस वे में लिख सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी नंबर. ओके, अंडरस्टैंड. सी, अगर हमारे पास कोई छोटा नंबर है, हम उसे 10 की पावर में इजीली लिख सकते हैं. एक्सपांडेड फॉर्म में लिख करके हम उसको 10 की पावर में चेंज कर सकते हैं. ओके, अगर 81 है, सो हाउ टू राइट 81 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 81 को हम प्राइम फैक्टर्स करके उसके बाद में हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड 81 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, this is the prime factors, means 3 into 3 into 3 into 3. So we can write 3 into 3 into 3 into 3. So 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम. So we can write 3 raised to the power 4, and here 3 is the base and 4 is the exponent or power. Okay, understand. So 10 to the 10 square, तो आप इसे क्या पढ़ सकते हैं, which is 10 raised to the power 2. Also read, हम इसे रीड कर सकते हैं 10 स्क्वायर, और वी कैन राइट इट 10 टू द पावर 2. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन रीड एनी नंबर इजी वे. ओके, अगर स्क्वायर 2 है पावर तो हम उसे स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, क्यूब है तो हम उसे क्यूब पढ़ सकते हैं, तो मतलब 3 पावर है तो हम उसे क्यूब पढ़ सकते हैं. बट अगर पावर 4 5 6 है तो हम उसे बोलेंगे rise to the power 4, rise to the power 5, rise to the power 6. Okay, understand. So this way we can read the any number, and here जो नीचे नंबर होता है that is called base of that number, and जो पावर होती है उसे हम बोलते हैं exponent. Okay, understand. So that is called power of exponent and power of any number. See here हाउ टू सॉल्व एनी नंबर. अगर हमारे पास है -2 to the power 3 दिया हुआ है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. अगर -2 की पावर 3 है, डेट मीन्स -2 का मल्टीप्लिकेशन -2 में कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स. देयर इज 3 टाइम्स इन -2 इंटू -2 इंटू -2. सो हमने जो इसके पहले चैप्टर करा था डेट इज़ इंटीजर, जो हम इंटीजर चैप्टर करे थे उसमें हमें पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एंड प्लस इंटू माइनस अगेन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. सो अवर आंसर इज 2 2 ज़ा 4 and 4 2 ज़ा 8. सो अवर आंसर इज -8. ओके, अंडरस्टैंड. इफ -2 to the power 4 है, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर 4 मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. So -2 into -2 plus 4, and -2 into -2 plus 4, and 4 4 ja 16. So our answer is plus 16. Okay, understand. So student, you know whatever the power, you have to solve that number. See, a into a को हम क्या लिख सकते हैं, a square, और we can read it a squared और a raised to the power 2. अगर 3 टाइम a है तो हम लिख सकते हैं a क्यूब्ड और a राइज टू द पावर 3. ओके, एंड इफ a टू द पावर 4 है, सो वी कैन राइट इट a राइज टू द पावर 4 एंड a 4. सो स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस in 13.1. Okay, now if we talk about law of exponent, it's very important. You have to know what is law of exponent. Okay, and this law of exponent is मैंने आपको जैसा बताया ये इम्पॉर्टेंट है, सो आपको ये रिमेंबर करना है, याद करना है. ओके, सो फर्स्ट लॉ, व्हाट इज़ अवर फर्स्ट लॉ. सी, अब अगर हम नॉर्मली एग्जांपल देखते हैं 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में, सी यहाँ पर बेस सेम है. बेस क्या है, 2. पावर्स क्या है, डिफरेंट. एक की पावर 2 है, एक की पावर 3 है. ओके, सो
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3? 2 टू द पावर 2 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 एंड 2 टू द पावर 3 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, सो अगर हम ये सारे 2 को एक साथ लिखें तो कितनी बार है 2? 1 2 3 4 एंड 5. सो वी कैन राइट 2 टू द पावर 5. डैट मीन्स हमने पावर्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया. ओके, सो अगर हमारा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, ओके, सो वी कैन ऐड द पावर्स. हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर लेते हैं. अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ में आ रही है? इफ़ द बेस इज सेम एंड बोथ द नंबर आर इन मल्टीप्लिकेशन, सो वी कैन राइट द नंबर एंड ऐड देयर पावर्स. ओके, सेम हियर देखो, -3 की पावर 4 है, -3 की पावर 3 है. So what is the meaning of -3 to the power 4? -3 into -3 into -3 into -3. Okay, and what do you mean by -3 to the power 3? That means -3 into -3 into -3. Okay, understand? So when we write, अगर हम इनको सबको खोल के रखेंगे, so -3 की पावर कितनी हो गई? 7. And what we can do here? 4 plus 3, that is 7. So we can get 7. So same here, first law of exponent is, अगर हमारे पास में base same है, what is our first law of exponent? If our base is same and power is different and both the number is in multiplication, so we can add the powers. Powers को क्या करते हैं? add कर देते हैं और number as it is रहता है. Okay, understand? So this is your first law of exponent. Okay, अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है. आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है? 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2. दिस इज़ नॉट अ सेम बेस. ये बेस सेम नहीं है, बिकॉज एक का बेस तो 2 है बट दूसरे का बेस क्या है? 3. ओके, अंडरस्टैंड? सो रिमेंबर दिस थिंग. नाउ अगर पावर डिवीज़न में हो, अगर देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, अगर बेस सेम है और हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना है दो नंबर्स का और उनकी पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? उनको ऐड कर देंगे. बट इफ़ बोथ द नंबर डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4. बट अगर बेस सेम है सो क्या करेंगे? सी हियर, 3 टू द पावर 7 का मीनिंग क्या हुआ? 3 कितने टाइम है? 7 टाइम. एंड 3 टू द पावर 4 का मीनिंग क्या हुआ? 3 कितने टाइम है? 4 टाइम. सो 4 टाइम 3 से कट जाएगा, बिकॉज एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है. सो हमारे पास कितने टाइम 3 बचेंगे? ओनली 3 टाइम. ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर वी कैन डू सब्सट्रैक्शन ऑफ अ पावर्स. अगर दोनों नंबर डिवीज़न में हैं और बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ओके, 7 माइनस 4. अंडरस्टैंड? सो हमें मिल गया 3. सेम हियर, 5 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर. सो 5 टू द पावर 6 अपॉन 5 स्क्वायर, आप इसे एक्सपांड करके लिखिए. 5 टू द पावर 6 का मीनिंग है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके, अपॉन 5 इंटू 5. सो व्हेन वी राइट हियर, सो हम 2 टाइम 5 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेंगे कितने टाइम? 5. 4 टाइम 5 इज रिमेनिंग, सो वी कैन राइट 5 रेज़ टू द पावर 4. सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डन, हमने क्या किया? हमने पावर्स को सब्सट्रैक्ट किया, मीन्स 6 माइनस 2 किया. सो वी कैन गेट 4. ओके, सो व्हाट इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट? सी हियर, if base is same and power is different and both the number are having in division, so we can subtract their power. We can subtract their power. Okay, okay, this is our second law of exponent. Now what about third law of exponent? Taking power of a power. अगर किसी नंबर की पावर पर पावर चढ़ी हुई है तो हम उसे कैसे देखेंगे? सो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है. अगर हमें 2 की पावर 3 और होल पावर मीन्स ब्रैकेट के ऊपर एक पावर दी हुई है, डेट इज़ 2.
स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। 2 की पावर 3 होल पावर 2। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 टू द पावर 3 होल पावर 2? अब पहले सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। सो 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 मीन्स हमने क्या किया, हमने जो ये स्क्वायर था उसकी पावर 2 थी, हमने उसे खोल दिया। ओके, नाउ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 मीन्स क्या हुआ, 2 की पावर 3 प्लस 3। हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 3। व्हाट डू यू मीन बाय 2 की पावर 3 प्लस 3? सो इट्स बिकम 2 की पावर 6। सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू हियर, हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर पावर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है। 3 इंटू 2 डेट इज 6। ओके, अंडरस्टैंड। सेम हियर 3 स्क्वायर की पावर 4। सो हमने कितनी बार लिखा 3 स्क्वायर को, 4 टाइम। अब बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। सो हमारा आ गया 3 टू द पावर 8। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। ओके, एंड व्हाट वी एक्चुअली डू, we are doing 2 into 4 that is 3 to the power 8. Okay, understand? So the if any base having power of power, so power would be multiplied. पावर क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाइड हो जाती हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सो दिस इज अवर थर्ड रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, let's see the example number 7. Can you tell which one is greater than 5 square into 3 or 5 square whole power 3? So when we want to solve this question, just a minute. So here 5 square into 3. What is the meaning of 5 square into 3? So 5 into 5 into 3. 5 5s are 25, 25 3s are 75. Okay, so here its answer is 75. Now 5 square whole power 3 का meaning हुआ 5 square into 5 square into 5 square. Okay, means 5 to the power 2 plus 2 plus 2, that is 5 to the power 5 raised to the power 6. And what is the meaning of 5 raised to the power 6? 5 raised to the power 6 का meaning होगा 5 into 5 into 5 into 5. मीन्स आप या तो इस टाइप से कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ 15625। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो योर आंसर इज, एक का आंसर आएगा 75 और दूसरे का आंसर आएगा 15625। मीन्स आपको 25 इंटू 25 इंटू 25 करना है। ओके, 25 इंटू 25 होगा 625 और 625 इंटू 25 आपका जो आंसर आएगा वो आपको राइट डाउन करना है, डेट इज़ 15625। ओके, सो 5 स्क्वायर होल पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर इंटू 3। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट सेम है और पावर डिफरेंट है, exponent is same and power is different, so what can you do here? See, अगर 2 to the power 3 है, see here 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 3. यहाँ पर 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 मीन्स 6 राइज टू द पावर 3। देखो एक्सपोनेंट यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ओके, सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू, वी कैन डू, हमने 2 इंटू 3 होल पावर 3 लिख दिया मीन्स 6 टू द पावर 3। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर, सी हमने क्या किया, हमने खाली अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, इफ पावर इज सेम एंड बेस इज डिफरेंट, देन वी कैन easily multiply the base and power is same. Okay, understand? So what is our fourth rule? A to the power m into b to the power m, so we can write it ab whole power m.
Okay, understand? So this way you can write the answer. Okay, let's see the example. If 2 into 3 to the power 5, so what do you mean by 2 into 3 to the power 5? आप इससे लिख सकते हैं 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3, आप कितनी बार लिखेंगे? 5 टाइम लिखेंगे. एंड इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 3 to the power 5. ओके, सेम 2a to the power 4 का मीनिंग है 2a into 2 मीन्स 2 भी 4 टाइम है और a भी 4 टाइम है. ओके, अंडरस्टैंड? सो this is your 4 main rule of exponent. So remember this rule first of all and complete 13.1 exercise. Okay, have a good day student.